السلام علیکم، بلٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں شازیب احمد اور میں ہوں صدرا میر۔ سب سے پہلے اس اہم منصوبے کی بات، سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد سمارٹ جنگل۔ وزیر اعظم عمران خان نے شیخوپورہ میں سمارٹ جنگل کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ماحولیاتی تبدیلیوں نے لاہور کو تباہ کر دیا، پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے۔ آلودگی سے بچوں اور بزرگوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔ عثمان بزدار اور ان کی ٹیم تیار رہے۔ راوی ریور پروجیکٹ میں رکاوٹیں آئیں گی، لیکن ہم کشتیاں جلا چکے ہیں، منصوبے کو مکمل کر کے ہی رہیں گے۔ ایک تو ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگائے تھے، ساری دنیا بڑی حیران تھی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، مذاق بھی اڑا۔ اب یہ سمارٹ فارسٹ بن رہا ہے، 10 ارب درخت ہمیں لگانے۔ جب ہم پہنچیں گے پاکستان بدل جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان میں جنگلات کو تباہ ہوتے دیکھا۔ جیسے جیسے جنگلات گئے ہمارے جانور بھی کم ہو گئے۔ لاہور کا میٹھا پانی تھا، سب نلکے سے پانی پیتے تھے، دیکھتے دیکھتے وہ پانی تباہ ہوا۔ لاہور تو سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا۔ جو پولوشن کی جو لیولز ہیں وہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ بچوں کی بھی جانیں خطرے میں ہیں اور بوڑھوں کی بھی۔ راوی کے اندر ساری لاہور کی سیوریج جا رہی ہے۔ یہ جب راوی جاتا ہے دریائے سندھ میں تو یہ ساری سیوریج نیچے تک جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے۔ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ مشکل ہے۔ اگر مشکل نہ ہوتا تو جنرل مشرف کے دور میں بن جاتا۔ پنجاب سپیڈ شہباز شریف اس نے بنا لینا تھا، لیکن وہ نہیں بنا سکا۔ ہم کشتیاں جلا کے جائیں گے، یعنی واپسی کوئی نہیں ہے۔ اور مجھے پتا یہ 1 سال کے اندر ہمیں کتنے مسئلے آئے ہیں۔ اس میں لوگوں نے اسٹے آرڈر لے لیے۔ چیف منسٹر صاحب، آپ کی ٹیم سب کو تیار ہونا چاہیے مشکلوں کے لیے۔ اس پروجیکٹ کو اب ہم روکنے نہیں دیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، افغانستان میں بھارت کے سارے قونصل خانے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں، افغانستان میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، ان کے چہرے لٹک رہے ہیں۔ شیخ رشید نے اپوزیشن کو بھی مشورہ دے دیا، بولے یہ وقت ڈومیسٹک سیاست کا نہیں، پاکستان خطے کا اہم ملک بننے جا رہا ہے۔ ہندوستان کو جو منہ کی کھانی پڑی ہے، انڈیا میں جو صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے سارے قونصلیٹ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ دنیا کی کوئی طاقت سی پیک میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ پی ڈی ایم کو مفت مشورہ دے سکتا ہوں کہ یہ خطہ دنیا کی سیاست میں اہم ہونے جا رہا ہے، اور ڈومیسٹک سیاست کا یہ وقت نہیں ہے 6 مہینے۔ اب جلسوں سے اور جلوسوں سے عمران خان نہیں جانے والا، ٹکا کے تن کے 5 سال لگائے گا عمران خان۔ کوئی پاکستان پر مہاجرین کا بوجھ نہیں ہے۔ پاکستان براہ راست افغانستان کے کسی مسئلے میں ملوث نہیں ہے۔ روس نے پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر کہتے ہیں، ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے، اب افغانستان میں کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وسط ایشیائی ریاستوں کو افغان مہاجرین کے سیلاب میں انتہا پسندوں کی آمد سے خبردار کیا۔ 31 اگست حتمی تاریخ ہے، اس دن تک ہر صورت افغانستان سے نکل جائیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا واضح اعلان، کہا 31 اگست کے بعد ایک بھی امریکی فوجی افغان سرزمین پر نہیں رہے گا۔ کابل سے نکلنے کا ہر دن خطرے سے بھرا ہوا ہے، داعش ایئرپورٹ کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ دوسری جانب گروپ 7 افغانستان پر پابندی کا فیصلہ نہ کر سکے، تاہم اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ 31 اگست کے بعد افغانستان سے نکلنے کی اجازت ہونی چاہیے، جس کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالا جائے گا۔ کورونا کی صورتحال آپ کو بتائیں، جس کی چوتھی لہر عروج پر پہنچ گئی ہے۔ 3.5 ماہ بعد سب سے زیادہ 141 اموات ہوئی ہیں، 4199 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ سب سے زیادہ صورتحال سندھ میں تشویشناک ہے، جہاں ایک روز میں 86 افراد جان سے گئے۔ صوبے میں 1700 نئے کیسز میں سے 876 کا تعلق کراچی سے ہے۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 6.83% رہی۔ ارحم خان رپورٹ کریں گی۔ کورونا کی چوتھی لہر بھی قہر ڈھانے لگی۔ 3.5 ماہ سے زائد عرصے کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ اموات۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 141 افراد کورونا کے باعث لقمۂ اجل بنے۔ اس سے پہلے 3 مئی کو 161 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ سب سے زیادہ سندھ میں 86 اموات ہوئیں، پنجاب میں 28، کے پی میں 20، اسلام آباد میں 3، بلوچستان میں 2، جبکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ایک ایک مریض کا انتقال ہوا۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4000
6,199 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 61,410 टेस्ट किए गए थे। मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रिकॉर्ड की गई। 1,721 नए केसेस सिर्फ सिंध से रिपोर्ट हुए, जिनमें से 876 का ताल्लुक कराची से है। कोरोना से मजमूई अमवात 25,220 हो गयी। फाल केसेस की तादाद 91,204 है। 6,168 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मुल्तान में 67%, बहावलपुर में 56%, इस्लामाबाद में 43%, जबकि लाहौर में 42% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन में आगे बताएंगे मुल्क के लिए अच्छी खबर। लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर गलत डाटा के इंदराज का इंकशाफ शहरियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वैक्सीन लगवाने के बावजूद कई अफराद का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। दानियाल उमर की रिपोर्ट में देखिए। वैक्सीनेशन हुई मगर सरकार के पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। लाहौर के एक्सपो सेंटर में ये क्या हो रहा है, आइए जानते हैं। ये लंबी कितारें और रश वैक्सीन लगवाने वालों का नहीं, बल्कि ये शहरी अपने मसले लिए एक्सपो सेंटर के शिकायत सेल पहुंचे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हजारों अफराद के डेटा का इंदराज गलत है। ऑनलाइन कंप्लेंट तो कर दो ना, लगी कोई और है, कोई हो रही है। शहरियों के मुताबिक वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाईं मगर इंदराज ही नहीं हुआ। कई माह से रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ख्वार हो रहे हैं। मेरी दूसरी डोज जो लगी है 5/3/2021 को लगी है। तो जब से मैं अभी आ रहा हूँ तो वो यही कह रहे हैं, अभी आया हूँ तो यही कह रहे हैं कि नेट नहीं आ रहा। बड़ा भाई मेरा ट्रैवल कर रहा था कोयटा कराची, उसने जाना था तो एयरपोर्ट पे उसे रोक लिया गया कि ये आपकी अभी तक डाटा अपडेट आप वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। कई अफराद को वैक्सीन कोई और लगी और सर्टिफिकेट किसी और का मिला। फर्स्ट डोज लगी है साइनोवैक, 24 मई को दूसरी डोज लगी साइनोवैक, लेकिन जब नादर से सर्टिफिकेट लिया तो इसमें अपीयर हो रहा कि मुझे कैन साइनो की डोज लगी है। बैरून मुल्क जाने वाले भी गलत इंदराज पर फंसे हुए हैं। वैक्सीन मैंने लगवाई है मॉडर्ना, ठीक है ना, और रिकॉर्ड में आ रही है साइनोवैक। कई चक्कर लगाने वालों के सामने अमला भी गलती का एतराफ कर रहा है। शाम को लास्ट में कंप्लेंट कराने है ना, तो उन्होंने कहा था दिन के टाइम में आओ, कंप्लेंट डिपार्टमेंट दिन के टाइम वो गोली करा रहे थे। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब ने दुरुस्त डेटा एंट्री की नाकामी पर निजी IT कंपनी को भारी मुआवजे पर लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर सौंपने का फैसला किया है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। अब आपको ये बताएं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक पर सफरी पाबंदी ख़त्म कर दी है। रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए फैसले का खैर मकदम किया। सऊदी वज़ारत सेहत ने साइनोवैक और साइनोफॉर्म वैक्सीन तस्लीम करने की भी मंजूरी दे दी। सऊदी इकामा होल्डर्स के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के शहरियों पर पाबंदी खत्म कर दी। मुमलिकत में बराह रास्त दाखिले की इजाज़त दे दी। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है फैसले का इतलाक उन तारकीन वतन पर भी होगा जो सऊदी अरब से रवाना होने से कबल मुमलिकत में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा चुके हों, लेकिन उन्हें तमाम मराहिल से गुजरना होगा ताकि उनका इन्फेक्शन से पाक होना यकीनी बनाया जा सके। ओमान पहले ही 1 सितंबर से पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे चुका है। रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से फैसले का खैर मकदम किया गया है। ट्विटर पर बयान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इससे हजारों पाकिस्तानी तारकीन वतन को फायदा पहुँचेगा। सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्होंने साइनोवैक या साइनोफार्म वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लगवाईं, उनके वैक्सीन सर्टिफिकेट्स को कबूल किया जा सकता है, बशर्त ये कि उन्होंने मंजूर शुदा वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगवाया हो। डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। इंटरम बैंक में डॉलर 166 रुपये से भी तजावुज़ कर गया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक रसद कम और तलब ज़्यादा होने से डॉलर महंगा हुआ। तजारती और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे के बायस भी रुपये की कदर गिर रही है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक तामीराती शोबे की एमनेस्टी स्कीम खत्म होने से आने वाले डॉलर्स भी रुक गए हैं, जबकि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी भी डॉलर महंगा होने की एक वजह है। यहाँ मुल्क के लिए अच्छी खबर, सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो गए। यौमिया 390 बैरल खाम तेल और 6 लाख क्यूबिक फीट गैस निकलेगी। पेट्रोलियम डिवीज़न हुकाम के मुताबिक निजी कंपनी यूनिवर्सल एनर्जी पाकिस्तान को मीरपुर खास में तेल और गैस के ज़खायर मिले हैं, जिनसे 390 बैरल यौमिया खाम तेल और 6 लाख क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। हुकाम का ये कहना है कि निजी एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 20 जून को खुदाई शुरू की थी। 65 दिन बाद 3004 मीटर की खुदाई पर ज़खायर मिले हैं, जिन्हें जल्द ही नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया जाएगा।
کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کو نکالنے میں موسم بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ ری فلوٹنگ آپریشن میں تیز ہواؤں اور بلند لہروں کی وجہ سے مزاحمت کا سامنا ہے۔ جہاز سے ٹگ بوٹ تک رستہ باندھ دیا گیا ہے۔ نمائندہ سی میکس عارف شیخ کے مطابق 20 ناٹیکل مائل فی گھنٹہ رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ کرین بردار کشتی سے جہاز کو باندھنا مشکل ہوا تو ٹگ سے کھینچنے کی کوشش کی جائے گی۔ ریسکیو حکام کے مطابق پہلے جہاز کا رخ سمندر کی جانب موڑا جا رہا ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کراچی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر میں اسٹریٹ کرائمز کی شرح 30% کم ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا۔ مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر پولیس ضروری اقدامات کرے۔ بڑی محنت سے سندھ خاص طور پر کراچی میں امن قائم کیا ہے، اب اس امن کو کسی صورت خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پورا سندھ منشیات سے پاک اور اسٹریٹ کرائمز پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ پولیس افسران کو ہدایت کی کہ جو غیر ملکی باشندے پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہوں گے، کیونکہ وہ دفتر سے باہر تو نکلتے نہیں۔ جتنا اسٹریٹ کرائم کراچی میں ہے اتنا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کراچی میں روزانہ ہزاروں موبائل فونز چھینے جاتے ہیں۔ کراچی کے اندر اس وقت جتنا اسٹریٹ کرائم ہے وہ آپ کے جو اے آئی جی صاحب یا آپ کے آئی جی صاحب ہیں کسی خوابوں کی دنیا کے اندر ہوں گے، کیونکہ دفتر سے تو باہر نہیں لگتے۔ جتنا اسٹریٹ کرائم اس وقت یہاں پر ہے شاید میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ اب ذکر افسوسناک واقعے کا۔ لاہور میں رکشہ ڈرائیور اور ساتھی ملزم کی ماں بیٹی سے اجتماعی زیادتی کے بعد کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ماں بیٹی قتل ہونے کے ڈر سے سڑکوں پر بھاگتی رہیں۔ قریبی مدرسے میں پناہ لی تو انتظامیہ نے پولیس کو بلوایا۔ جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ماں بیٹی سے اجتماعی زیادتی کا افسوسناک واقعہ، متاثرہ خواتین کو پناہ کہاں ملی؟ کلوز سرکٹ فوٹیج مزید حقائق سامنے لے آئی۔ واقعہ 23 اگست کی رات چونک کی حدود میں پیش آیا۔ زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں بیٹی نے جان بچانے کے لیے جائے وقوع سے 300 میٹر دور ایک مدرسے کی جانب دوڑ لگائی۔ مدرسہ انتظامیہ نے خواتین کو پناہ دی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس کے مطابق ملزم عمر فاروق اور منصب اس سے قبل بھی اسی نوعیت کے واقعات میں ملوث رہ چکے ہیں۔ ملزمان کے ڈی این اے سیمپل فرانزک لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ اور خاتون ٹک ٹاکر سے بدسلوکی کے مقدمے میں گرفتار 104 ملزمان کی شناخت پریڈ کے لیے 28 اگست کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ متاثرہ خاتون کو ہفتے کے روز صبح 10 بجے کیمپ جیل پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور سے ارشد علی کی رپورٹ۔ گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بدسلوکی کیس میں پیش رفت جاری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ رضوان احمد کو شناخت پریڈ کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ متاثرہ خاتون کو مقررہ دن کیمپ جیل پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹک ٹاکر خاتون مجسٹریٹ کی موجودگی میں ملزموں کی شناخت کریں گی۔ دوسری طرف سیشن عدالت سے 2 مزید ملزمان نے 3 سپتمبر تک عبوری ضمانتیں کرا لی ہیں۔ اس کیس میں اب تک 3 ملزمان عبوری ضمانت کرا چکے ہیں۔ کیمرہ مین خابر محمود کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ تکمیل کے بعد بھی تجربات، خبر کی تفصیل تھوڑی دیر بعد۔ لاہور میں زیادتی کا ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ ہربنسپورہ میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم رشید گھر کے باہر کھیلتی 15 سالہ لڑکی کو ورغلا کر اپنی دکان میں لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ویڈیو سامنے آنے پر ملزم کی گرفتاری عمل میں آئی۔ ایس ایس پی کینٹ نے والدین سے اپیل کی ہے کہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ پسند کی شادی کا تنازع، لاہور کی کینٹ کچہری میں لڑکی کے اہل خانہ نے لڑکے پر دھاوا بول دیا۔ وکلا اور سائلین نے لڑکے کو چھڑوایا، تاہم پولیس نے موقع پر پہنچ کر فریقین کو حراست میں لے لیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کے نکاح کے موقع پر وینیو کے باہر مخالفین احتجاج کرتے رہے، لیکن نکاح کے بعد جنید صفدر نے خوبصورت آواز میں گانا گایا جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یاد ہے مجھ کو تو نے کہا تھا تم سے نہیں روٹھیں گے کبھی، دل کی طرح سے ہاتھ ملے ہیں کیسے بھلا چھوٹیں گے کبھی، تیری باہوں میں بیتی ہر شام
अब आपको बताएं 9 करोड़ के चेक बाउंस होने के केस में बड़ी कारोबारी शख्सियत को हथकड़ी लग गई। शेख मोहम्मद अकबर को जमानत मुस्तरद होने पर सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। देखिए, मुकदमे के मुताबिक इनकी जो कंपनी है प्लास्टिक मास्टर प्लास्टिक पॉली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का एक मुआहदा हुआ था अली वजीर कंपनी से। 12 करोड़ रुपए की ये डील थी और दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 9 करोड़ रुपए के चेक किए गए थे जो कि बाउंस हो गए और इसी सिलसिले में मुकदमा दर्ज करवाया गया था कराची में। ताहम मुलजिम ने जमानत हासिल कर रखी थी। शेख मोहम्मद अकबर जो कि CEO हैं कंपनी के, उन्होंने जमानत हासिल कर रखी थी। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने वार्निंग दी थी कि चेक को अगर चेक्स को कैश नहीं करवाया गया तो उन्हें उनकी जमानत मंसूख कर दी जाएगी। आज समात के मौके पर अदालत ने जमानत मंसूख की, जिसके बाद मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान। महकमा माल खैबर पख्तूनख्वा में बड़े मालियाती स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। महकमा माल के हुकाम ने सरकारी अराजी फरोख्त कर दी। बात करेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, बताइए नैब से मुताल्लिक और मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने जो है महकमा माल के खिलाफ जो है इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। ये 480 मिलियन रुपए बताए जा रहे हैं जिससे जो को नुकसान पहुंचाया गया। ये सरकारी जमीन थी जो कि जो है फेक डीड्स बनाकर जो है कमर्शियल एंटिटी जो है प्राइवेट बंदे के नाम पे मुंतकिल की गई। तमाम जाली रिकॉर्ड जो है मिलते हैं उसको नैब को नैब से मुक़ायदा तहक़ीक़ात का महकमा माल के खिलाफ आगाज कर दिया है। सज्जाद हैदर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। शाजिया मरी ने अपोजिशन इत्तेहाद को निशाने पर ले लिया। कहा PDM नहीं, कुछ जमातें कराची में जलसा कर रही हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली PDM तो वो थी जो बिलावल के मशवरे पर बनी थी, मगर इसमें 2 जमातों ने काबिले एतराज़ रवैया अपनाया जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी PDM से निकल गई थी। PDM जलसा करने जा रही है सिंध में, पीपल्स पार्टी क्या उसमें किरदार अदा करेगी? सिंध में होस्ट है पीपल्स पार्टी, तो क्या जाएंगे आप लोग? देखिए, PDM तो बनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मशवरे पे। पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी। अब मुझे नहीं पता ये PDM है या ये कोई और चीज़ है, क्योंकि जब PDM थी तो उसमें से जिस तरीके का रवैया बिलखसूस 2 जमातों का था दीगर जमातों के साथ, वो काबिल एतराज़ था। और उसके बाद फिर 2 जमातों ने ये फ़ैसला किया कि जी हम इस तरह के रवैये को नहीं झेल सकते, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट पार्टीज़ हैं, किसी की ज़ेली जमात नहीं है। अब कोई भी जलसा कर सकता है। मेरे नज़दीक तो अब वो PDM है नहीं, लेकिन जलसा तो कोई भी जमात कर सकती है। अगर मिलके 2-3 जमातें जलसा कर लेंगी तो पीपल्स पार्टी की जहां हुकूमत होगी वहां पीपल्स पार्टी कभी किसी को उसके हक से महरूम नहीं करेगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा बिलावल की हुकूमत ने 13 साल में कराची को एक बस नहीं दी। लाड़काना को एड्स लगाने वाले अब कराची को एड्स लगा रहे हैं। बिलावल जरदारी साहब ने कराची में बड़ी दौड़ें लगाई हैं। CM गाड़ी चला रहे थे कराची में, इधर से उधर बड़ी फुर्तियां दिखाने की कोशिश की। आप बीबी के साहबजादे हैं, झूठ ना बोले। आपको पर्ची पे जो लिख के देते हैं आप वो बात बता देते हैं। 1100 के प्रोजेक्ट्स में से 62% हमारा था, तकरीबन 625 अरब फेडरल गवर्नमेंट के, और बाकी तो आपके थे। 3 बड़े नाले जो हमारे जिम्मे थे, फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे थे, NDMA ने 35 अरब से उसका 80-90% काम कर दिया है। ग्रीन लाइन इंशाल्लाह अक्टूबर में रोडों पे चलती हुई नजर आएगी। कराची की तबाही की जिम्मेदार बिलावल 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 हम कहेंगे उनको। कराची में एक घूंट पानी आपने नहीं दिया। कराची में बिलावल हाउस के अंदर लगने वाली आग को भी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिए जाने वाले फायर टेंडर्स ने बुझाया। अब मैं कहता हूँ कराची वालों, अगर गटरों पे कचरों पे तस्वीरें लगाओ, उस असल जिम्मेदार की लगाना जो कि कराची की तबाही का जिम्मेदार है, जिसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। और फौरी बल्दियाती इलेक्शन और जनूबी सिंध सूबे का मुतालबा। MQM पाकिस्तान एक बार फिर मुतहरिक हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं फाल बल्दियाती निज़ाम के बगैर कराची नहीं बदल सकता। बोले 2017 की मुतनाज़ा मर्दमशुमारी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हुआ। कराची का आवाम के लिए बहुत से मसाइल है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर शायद उनका नंबर 1 प्रायोरिटी ना हो। एक फाल शराकती और शमूलियती बल्दियाती निज़ाम के बगैर सिंध के शहरी इलाकों की हालत को बदला नहीं जा सकता। 98 में जो सेंसस हुआ है उसकी बुनियाद पर
सिंध भर में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए। सेंसस को हम तस्लीम नहीं करते, मुतनाज़ा तरीन सेंसस है और इस सेंसस के सबसे बड़े बेनिफिशरी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। QM और PTI की बात है, ना वो खुद करने को तैयार है और ना वो किसी और को करने की इजाज़त दे रहे हैं। आपकी चोरी पकड़े तो आप कह रहे हैं चोरी करने नहीं देते, आपकी करप्शन पे शोर मचाएं तो आप कहते हैं करप्शन करने नहीं देते। अंदरूनी सिंध में आपको कौन रोक रहा है? वहाँ आपने कौन से गुल खिलाए हैं? तारीख की सबसे बदउनवान और नाकाम तरीन हुकूमत हमारे हिस्से में आई है। अवामी फलाह के लिए कायम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में प्लाटों की बंदर बांट के खिलाफ नैब का एक्शन। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस दायर। एक शख्स को गैर कानूनी तौर पर 17 प्लाट जबकि दूसरे को 51 एग्रो फार्म्स अलॉट करने का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। माले मुफ्त दिले बेरहम, अवामी फलाह के लिए बनने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी ने करप्शन की नई दास्तान रकम कर दी। नई जमीन फराहमी के मुआहदों की आड़ में जम्मू कश्मीर सोसाइटी के प्लाटों के अलाटमेंट में बड़ा घपला सामने आ गया। नैब ने इंतजामिया समेत 7 मुलजमान के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस दायर कर दिया। सोसाइटी चेयरमैन कैसर चीमा और सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ कुरैशी रेफरेंस में मरकजी मुलजम नामजद। नैब रेफरेंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरफराज नामी शख्स को 16 रिहायशी जबकि 1 कमर्शियल प्लॉट अलॉट किया गया। शबीर अहमद नामी शख्स को 4 कनाल के 51 एग्रो फार्म्स अलॉट कर दिए गए। सरफराज अहमद ने मुआहदे के मुताबिक सोसाइटी को कोई जमीन फराहम ही नहीं की। मोहम्मद शबीर ने मुआहदा तो किया 343 कनाल अराजी की फराहमी का, मगर 96 कनाल देकर ही हाथ खींच लिया। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जमीन एक्वायर करने के मुआहदों में CDA कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की। मुलजमान को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने पर सजा देने की इस्तदा की गई है। एहसान मानी और असद अली की बतौर बोर्ड मेंबर मुद्दत खत्म हो गई। PCB के गवर्निंग बोर्ड का इजलास कल तलब कर लिया गया। गवर्निंग बोर्ड का इजलास वाइस चेयरमैन की तकर्री के लिए तलब किया गया है। गवर्निंग बोर्ड मेंबरान में से किसी एक को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चेयरमैन के लिए 2 नाम भिजवाए जाएंगे, जिनमें से चेयरमैन PCB के नाम का इंतखाब होगा। फैसलाबाद की तहसील समंदरी को झंग से मिलाने वाली सड़क का बुरा हाल। बाईपास रोड टूट फूट का शिकार है। धूल मिट्टी की वजह से लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मेरा नाम मिर्ज़ा जाहिद है जी। मैं इधर सदार बाईपास का रहायशी हूँ और हमारा कारोबार भी इधर है। इतना सड़क ख़राब है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तकरीबन 5 से 6 फुट के दरमियान इधर गड्ढे पड़े हुए हैं। ये जो सड़क है ना पूरे पाकिस्तान को तकरीबन इधर से मिलाती है। जंग रोड समुद्री तक इधर से सड़क जाती है। अगर इधर बारिश हो जाए तो तकरीबन ये दरिया का मंजर पेश करने लगती है सड़क। ये पहाड़ है कि ये रोड है? हाँ जी, इधर तो पैदल चलना भी बहुत मुहाल हुआ है। हम लोग किधर जाएं, क्या करें? ये तकरीबन 10-12 लाख जो आदमी है ना जी, इधर से रोज़गार कमाते हैं। जब ये हालत रोड की होगी तो क्या करेंगे हम? ये आंधी नहीं चल रही है, इधर से मिट्टी उड़ती है। ये इतनी ज़्यादा मिट्टी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम हमारे जितने भी लोग इधर काम करते हैं ना, सभी सांस की बीमारी को शिकार हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त है कि ये हमारा जो रोड है ना, इसको कंप्लीट करवाएं और हमारे बच्चों का रोज़गार जो है इसको चालू करवाएं। पेशावर का मेगा सफरी मंसूबा BRT तकमील के बाद भी तजर्बात की नज़र। हश नगरी स्टॉप के डिज़ाइन में एक बार फिर तब्दीली। अब की बार क्या मसला दरपेश हुआ, जानते हैं सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। पेशावर का BRT मंसूबा हमेशा रहा तनकीद की जद में। BRT ट्रैक पर बसें चलते 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन एक बार फिर डिज़ाइन में खराबी की वजह से हश नगरी स्टॉप अंडरपास तोड़ दिया गया, जिस पर शहरियों ने भी किया तशवीश का इजहार। लाखों करोड़ रुपए खर्च किए और आज भी इनका मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ। तो मतलब होना तो ये चाहिए था कि पहले ही सोच लेते हम क्या करना है और क्या करना चाहिए हमें। ठेका मिलेगा, उसमें मारदाड़ होगी, उससे पहले मारदाड़ हुई और ये तमाम मसाइल पैदा हो रही हैं। सूबाई हुकूमत ने डिज़ाइन में खराबी का जिम्मेदार ठेकेदार को करार दे दिया। ऐसी जगहों पे जहाँ पे डिज़ाइन में इश्यूज हैं, जहाँ पे जो वर्क है उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, हम उसको दोबारा हटा रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट के एंड पे है। उसकी कोई इम्प्लीकेशंस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं आती। इंतजामिया के मुताबिक अंडरपास की राहदारी तंग होने के बाइस शहरियों को दुश्वारी का सामना था, जिसको दोबारा तामीर किया जा रहा है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया।
मशहूर आलम शायर अहमद फराज की 13वीं बरसी पर वकार हैदर की रिपोर्ट। अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए। ज़माने तालिब इल्मी के दौरान ही उनका पहला शेरी मजमुआ तन्हा तन्हा शाया हुआ और वो अदबी हलकों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। उनके कुल 14 शेरी मजमुए शाया हुए। उनका मशहूर ज़माना कलाम पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक मेहदी हसन ने भी गाया। अहमद फराज अकादमी अदबियात पाकिस्तान के पहले सरबराह बने। उन्हें आदमजी अदबी अवार्ड, अबासीन अवार्ड, फिराक गोरखपुरी अवार्ड के अलावा भारत ने उन्हें टाटा अवार्ड से भी नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान से भी नवाज रखा है। वो तनकीद बराए तनकीद के बजाय इनफरादी अमल के कायल थे। अहमद फराज उन चंद खुश नसीब तरीन शायरों में से एक हैं जिन्हें उनकी जिंदगी में ही बेपनाह शोहरत ही नहीं बल्कि मोहब्बत और प्यार भी मिला। सैयद अहमद फराज 25 अगस्त 2008 को इस दुनिया से मुंह मोड़ गए, लेकिन उनकी शायरी आज भी दिलों पर राज करती है। किसी और देश की ओर को सुना है फराज चला गया, सभी दुख समेट के शहर के, सभी कर्ज उतार के शहर का। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।